A very good morning and Jai Hind students. This is Amit Kumar Gautam and you are watching my maths lecture of class 9. So in the last video we have talked about polynomials, their degree, zero polynomial, coefficients of variable and its power, kind of polynomials. In the definition of polynomial, I taught you a polynomial is the combination of variable and its power together with some real constant, and its general form, the general form of a polynomial with the degree n, is in the form of fx equals an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus an minus 2 x to the power n minus 2 plus dot 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 a2 x square plus a1 x plus a naught, where an minus 1 an minus 2 dot 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 up to a1 a naught all are real constants, and where x is a variable. In the last lecture, some students were facing the problem to expressing any polynomial in its general form. So it is not so important topic, please don't take tension. I will. This is the formulation. Or you can say it is general form. General form of any polynomial. तो पहले मैं बात करूंगा लीनियर पोलिनोमियल. लीनियर polynomial. You very well know what is a linear polynomial. If in any polynomial the greatest degree is 1, the polynomial is called linear polynomial. Linear polynomial. For example, we can take first example, 2x minus 1 root 5 minus 3 4z 3t. These all are the example of linear polynomials, right? And next, quadratic polynomial. Quadratic polynomial. मैंने आपको बताया था, in any quadratic polynomial the maximum degree must be 2. If degree must be 2, so the coefficients of degree of x will also increase. a2 x square plus a1 x to the power 1 plus a naught. Take an example, 5x square minus 3. अब आपको ये बताना है कि क्या ये पॉलिनोमियल इस फॉर्म का है. यस इट इज. वाई? इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं जरा. एक्स स्क्वायर की पावर यहाँ है, यहाँ भी प्रेजेंट है. एक्स की 1 पावर इसमें कोई नहीं है. इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग यह हुआ उसका कोफिशिएंट आपको 0 सपोज कर लेना है, राइट? नाउ दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द गिवन एग्जांपल. 5x square plus 0x minus 3, where a2, this is what? This is your a2 and this is your a1 and minus 3 is your a naught. a2 is 5, a1 is 0 and a naught is minus 3. इसी तरह आप क्यूबिक डिग्री पॉलिनोमियल का फॉर्मुलेशन कर सकते हैं. क्यूबिक डिग्री पॉलिनोमियल को आप इस तरह लिख सकते हो. सपोज hy is any polynomial, then its general formulation is x3y cube plus, sorry, it is a3y cube plus a2y square plus a1y plus a naught, where all ai's means a3 a2 a1 a naught, ये सभी आपके क्या होंगे? कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट्स. and y is what? Y is variable and these are the powers of variable. After this we categorize the polynomials, their forms: linear polynomial, quadratic polynomials, cubic polynomials, their identification, coefficients. Now we are going to talking about root of a polynomials, or you can say zeros of a polynomial. Zeros of a polynomial. Suppose
fx equals x minus 2 is any polynomial. So we are talking about zeros. तो नाम से थोड़ा इंडिकेट हो रहा होगा zeros. What are zeros? The value which can be used to make the polynomial zero. एक ऐसी रियल वैल्यू जो किसी भी पॉलिनोमियल के एक्स वेरिएबल के आप रिप्लेस करोगे और इसको जीरो में कन्वर्ट कर देगी. तो अब जरा मुझे यहाँ ये बताइए एक्स के प्लेस पे ऐसी क्या वैल्यू आप लोग पुट करो कि ये पूरा पॉलिनोमियल जितना है वो जीरो बन जाए. सो हाउ कैन वी ऑब्टेन दीज जीरोस फ्रॉम अ पॉलिनोमियल. तो दिस इज अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग जीरोज. स्टेप फर्स्ट में आप लोगों को ये करना है, कन्वर्ट द पॉलिनोमियल इनटू इट्स इक्विवेलेंट पॉलिनोमियल इक्वेशन. दैट इज जस्ट पुट fx इक्वल्स जीरो. fx जो भी आपको गिवन होगा उसको आप जीरो के इक्वल पुट कर देंगे. राइट. नाउ इन द गिवन एग्जांपल x minus 2 equals 0. So you get from here x equals 2. So this is the solution of this equation. x equals 2 is the solution. ये इस इक्वेशन के लिए तो सॉल्यूशन का काम करता है. मार्क माई वर्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन, नॉट अबाउट जीरोज. x equals 2 is the solution of this equation. और यहीं से आप लोग ये बोल सकते हो x equals 2 is the zero of polynomial px equals x minus 2. जब आप पॉलिनोमियल की बात करोगे तो आप ऑलवेज एक वर्ड यूज करोगे, दिस वर्ड इज जीरो. जब आप इक्वेशन की बात करोगे तो आप ऑलवेज सॉल्यूशन की बात करोगे. इक्वेशन के लिए हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं और पॉलिनोमियल के लिए हम जीरो फाइंड करते हैं. ये दोनों डिफरेंस आप याद रखिएगा अच्छे से. मार्क माई वर्ड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट zeros and solutions. I repeat my words. We find solution for equation and we find zeros for polynomials. Take another example. This is quadratic polynomial. Px equals x square plus 5x plus 6. This is our polynomial. तो फर्स्ट स्टेप में आप लोग क्या करना है, मैंने इसको बोल दिया आपको जीरोज फाइंड करते हैं. फाइंड जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल. राइट. तो ये इसका वर्किंग रूल होने वाला है. पुट px इक्वल जीरो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट द गिवन पॉलिनोमियल इक्वल्स जीरो प्लस 6. इसको हमने जीरो के इक्वल पुट कर दिया. जो भी पॉलिनोमियल px आया, px की वैल्यू तो ये है ना, तो उसको हमने जीरो के इक्वल पुट कर दिया. अब आपने इसको फैक्टराइज करना सीखा होगा 8th क्लास में. राइट. द फैक्टर्स ऑफ दिस विल बी 3 plus 2 plus 6 equals 0. Why? Because you have to factorize 6 and 6 is 3 multiplied by 2 and 3 plus 2 is what? 3 plus 2 is 5. Now your factors are 3x 2x plus 6 equals 0. Take x as common from first two terms, x plus 3, and take 2 common from last two terms. You will get x plus 3. Now these brackets are same. X plus 3, x plus 3, x plus 3 and x plus 2 equals 0. When the multiplication of two brackets equals 0. When the multiplication of two brackets is equals 0, then one of them is must be equals 0. Must be equals 0. X plus 3 equals 0. Either this equals 0 or x plus 2 equals 0. If x plus 3 equals 0, interchange 3 to right side, you will get x equals minus 3. Interchange 2 to right side, you will get x equals minus 2. That means x equals minus 3 and x equals minus 2 are the root of the given polynomial x square plus 5x and plus 6.
Now we shall talk about zeros of a zero polynomial. As I have already explained what is zero polynomial, you very well know. The zero polynomial contains a constant zero only. इसके अलावा इसके पास कोई कांस्टेंट नहीं होगा, कोई वेरिएबल नहीं होगी, कोई पावर नहीं होगी. अब जरा मुझे ये बताइए, जीरो पोलिनोमियल के लिए आप x के प्लेस पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई में x लिख लीजिए, कोई बात नहीं है. ये लो, प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. 0 इंटू एक्स क्यूब, कोई प्रॉब्लम नहीं. आप कितनी ही पावर लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज सभी के कोफिशिएंट क्या है, 0. ओवरऑल सभी कुछ क्या हो जाना है, 0 ही हो जाना है. तो आप 0 लिखिए, इसको इस फॉर्म में लिखिए. इट डजेंट मैटर, बट इट्स मैटर व्हेन वी फाइंड डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल. इसकी डिग्री क्या बताएंगे आप लोग. यहाँ अगर आपने ये टर्म रिमूव की, सिर्फ ये टर्म रखी, तो डिग्री अब तो 1 हुई. अगर आपने ये दोनों टर्म ली तो डिग्री 2 हो जाएगी. अगर आपने ये 3 टर्म ली तो डिग्री 3 हो जाएगी. जैसे आपने टर्म बढ़ाई तो डिग्री 4 हो जाएगी. तो इसका मतलब आप इसकी डिग्री कितनी बोलोगे, इनफाइनाइट. नो, इट इज सेंसलेस, बिकॉज हम डिग्री की बात वहीं करते हैं जहां आपके जो ये सब कोफिशिएंट्स आएंगे वो नॉन जीरो हो. क्या हो, नॉन जीरो. दैट मीन्स जो मैक्सिमम डिग्री होगी उसका कोफिशिएंट नॉन जीरो हो, तभी हम डिग्री की बात करेंगे, अदरवाइज हम कभी डिग्री की बात नहीं करेंगे. तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0. सो चलिए हम बात कर रहे थे किसकी, जीरोज ऑफ जीरो पॉलिनोमियल. जीरोज ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, जीरोज, राइट. तो जीरो पॉलिनोमियल की, जैसे जीरोज की मैंने आपको डेफिनेशन बताई, एक ऐसा नंबर जिसको आप पॉलिनोमियल में पुट कर दोगे और वो उसको जीरो बना देगा, राइट. एक ऐसा नंबर जिसको आप पॉलिनोमियल में पुट कर दोगे वो पॉलिनोमियल को क्या बना देगा, 0. सपोज एक पॉलिनोमियल मैंने अभी आपको लास्ट टाइम बताया था, ये इसका एक रूट हमने फाइंड किया था, वो क्या था, 2. एक्स के प्लेस पे आपने यहाँ 2 पुट करा, जरा 2 पुट करिए. जहाँ जहाँ एक्स आया, यहाँ एक्स आया, यहाँ भी एक्स आया, तो एफ एट वैल्यू 2 इज 2 माइनस 2, क्या बन गया, 0. पॉलिनोमियल की 2 पे वैल्यू कितनी आई, 0. तो 2 रखने के बाद ही तो 0 आई, दैट मीन्स 2 इसका क्या हुआ, 0. तो जीरो पॉलिनोमियल के लिए एक ऐसी वैल्यू मुझे बता के दीजिए जो इसे 0 बना देगी. बताइए जरा क्या आने वाली है. नो गैस. देखिए जरा, ये तो पहले से ही 0 है. अब आप इसमें x के प्लेस पे, इस x के प्लेस पे, बिकॉज 0 के मल्टीप्लाई में कितनी x की पावर लिख लो, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं पड़ने वाला ना. चलिए, तो अगर x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, 0 इंटू 1 इट इज 0. अगर आपने इस बार x के प्लेस पे 5 पुट किया, 5 इंटू 0 अगेन 0. आप कोई भी रियल नंबर ले लो और पुट करते चले आओ इसमें, ये क्या बन जाने वाला है आपका, 0 बन जाने वाला है ऑलवेज. तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ एवरी रियल नंबर इज 0 फॉर जीरो पॉलिनोमियल. वी कंक्लूड so we conclude from here every real number is a 0 for zero polynomial. Every real number is a 0 for real polynomials. चलिए, तो आगे कंसेप्ट पे बात करते हैं, थोड़े क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको एक वर्कशीट दूंगा. सो लेट्स स्टार्ट. Check whether the question is -2 and +2 are the zeros of the polynomial x + 2. आपको ये चेक करना है, चेक वेदर x -2 + 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x + 2. सो चेक करते हैं. चलिए, दिस इज योर आंसर, यू कैन से सॉल्यूशन.
x इक्वल्स पहले माइनस का 2 पुट करने वाले हैं क्वेश्चन में, तो उससे पहले आप सपोज कर लोगे, सपोज एफ एक्स इक्वल्स एक्स प्लस 2। ऐसा हमने कंसिडर कर लिया कि जो हमारा गिवन पोलिनोमियल है वो एफ एक्स है, एफ एक्स इज अ पोलिनोमियल, एफ एक्स इक्वल्स एक्स प्लस 2। सो एक्स के प्लेस से पहले 2 पुट करेंगे, देखते हैं, चलिए एक्स के प्लेस से 2 पुट करते हैं पहले। तो एक्स यहाँ भी आया आपका, यहाँ भी आया है, जब एक्स यहाँ भी आया यहाँ भी आया तो दोनों को रिप्लेस कर दिए एक्स इक्वल्स -2 से। एफ -2 इक्वल्स वॉट, -2 प्लस 2, दिस इज 0। यू गेट फ्रॉम हियर एफ -2 equals 0. That means the value -2 makes the whole polynomial is 0. This means what? This means -2 is the 0. Right? So now we check for x equals positive 2. X equals plus 2. So put x equals 2 in both sides of the polynomial. f2 equals 2 plus 2 and you very well know 2 plus 2 is 4. f2 किसके इक्वल है, 4 के, विच इज नॉन जीरो। 2 पे वैल्यू कितनी आई, 4, जीरो तो नहीं आई ना, दैट मीन्स 2 इज नॉट a 0 of the given polynomial. राइट, चलिए आगे बात करते हैं। एंड योर नेक्स्ट कैटेगरीज क्वेश्चन आर फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 एट x इक्वल्स -1 एंड x इक्वल्स 3। द क्वेश्चन इज, आई रिपीट द क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 एट x इक्वल्स -1 एंड x इक्वल्स 3। So let's find. We start solution. Substituting x equals -1 in the given polynomial. In given polynomial. So given polynomial is what? f(x) equals x square minus 3x minus 4. Replace x with -1। x को आपको किससे रिप्लेस कर देना है, -1 फ्रॉम बोथ साइड ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो f -1 इक्वल्स -1, वी रिप्लेस x by -1, नॉट इट्स पावर्स, पावर्स रिमेन सेम, -4। नाउ स्क्वायर ऑफ -1 इज 1, यू कैन मल्टीप्लाई -1 into -1, minus minus plus, and this will be positive 1. Again minus and minus plus, 3 1 जा 3 minus 4, 3 plus 1 is 4 and this is 4 minus 4 and this is 0। f -1 पे फंक्शन पॉलिनोमियल f की -1 पे कितनी वैल्यू आई है, 0। तो उसने वैल्यू तो फाइंड कराई है, फाइंड दी वैल्यू। तो द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल एट -1 इज 0 एंड यू वेरी वेल नो अ वैल्यू विच मेक्स द पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। सो -1 इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो -1 गिवन पॉलिनोमियल का 0 भी है और साथ ही साथ -1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू भी कितनी है, 0 है। चलिए x इक्वल्स 3 के लिए आप फाइंड करोगे और मुझे बताओगे, डू योरसेल्फ। एंड योर नेक्स्ट कैटेगरीज क्वेश्चंस आर वेरीफाई x इक्वल्स -1 -2 आर द जीरोज
of the one more example of same kind. Question: you have to check for x equals minus 2 upon root 3. It is not x, sorry, it is t, and your polynomial is pt, and your polynomial is 3t square minus 1. So let us check for t equals minus 2 by root 3. It is not negative, it is, I think it is positive. 2 by root 3 pt 3t square minus 1. Let's check. Solution: substituting t equals 2 upon root 3 in the given polynomial, and your given polynomial is pt equals 3t square minus 1. Substitute t equals 2 by root 3 in the both sides of the equation. 3t square, and the value of t is 2 by root 3 square and minus 1. Let us check what is the result. 2 square is what? 2 square is 4. Root 3 square is what? Root 3 into root 3. रूट 3 की रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं कितना मिलता है? 3 मिलता है. कैंसिल 3 by 3 minus 1. दिस इज 3. दैट मीन्स एट 2 by root 3 द polynomial gives value 3. दैट मीन्स इट इज नॉट इक्वल 0. सो क्या रिजल्ट आया बताइए? t इक्वल्स 2 by root 3 इज नॉट आ 0. राइट. सो अभी तो आप कर सकते हैं ना. नाउ दिस टॉपिक इज ओवर एंड आई स्टार्ट अ न्यू टॉपिक विच इज रिमाइंडर थ्योरम. Remainder theorem. And what is the statement of remainder theorem? You very well know. If you have to divide number 20 by 3, so 3 6 are 18, and you will get 2 as remainder. This is called what? This is divisor. This is what? And 20 is what? बताइए. 20 दिस इज व्हाट? डिविडेंड. डिविडेंड. एंड 6 इज व्हाट? इट इज क्यूशेंट. QUOTIENT. एंड 2 इज व्हाट? ये तो सभी को पता होगा. दिस इज रिमाइंडर. सो रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या बोलती है? डिविडेंड equals divisor, into quotient plus remainder. इन शॉर्ट में हम इसको कभी कभी ये लिख सकते हैं डिविडेंड इक्वल डिविजर इंटू क्यू प्लस आर. वेरीफाई करते हैं क्या है. ठीक है. डिविडेंड इक्वल्स डिविजर इंटू क्यूशेंट प्लस रिमाइंडर. चलिए वेरीफाई करते हैं इस एग्जांपल पे. 3, 26 एंड 2. 3 इज डिविजर, 20 इज डिविडेंड, 6 इज क्यूशेंट एंड 2 इज रिमाइंडर. तो डिविडेंड के प्लेस पे डिविडेंड की वैल्यू रखिए. दिस इज 20. सो 20. राइट. नाउ इन द फॉर्मूला इट इज डिविजर. दिस इज व्हाट? डिविजर. एंड योर डिविजर इज 3. डिविजर इज 3. क्यूशेंट इज 6. क्यूशेंट इज 6 प्लस रिमाइंडर. 6 3 जा 18. 6 3 जा 18 प्लस 2. 18 में जब आप 2 ऐड करोगे तो वैल्यू क्या मिलती है? 3. सॉरी 20. दैट मीन्स बोथ साइड्स आर इक्वल. दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम. आई रिपीट माई वर्ड्स. डिविडेंड इक्वल्स डिविजर इंटू क्यूशेंट प्लस
रिमाइंडर। तो ये तो बात हुई छोटी क्लासेस में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में आप लोगों ने नंबर्स दिए छोटे छोटे, आपने बता दिया। तो नाइन्थ में आकर के आप क्या पढ़ने वाले हो? क्या नाइन्थ में आप लोग यही पढ़ोगे, छोटी छोटी क्लासेस की चीज़ें, फिफ्थ की, सिक्स की, सेवन्थ की चीज़ें पढ़ोगे? नहीं। तो यहाँ के थोड़ा आपका स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, यहाँ के आपका थोड़ा लेवल अप हो जाता है। तो इसमें हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं वेरिएबल्स की, पॉलिनोमियल्स की। यहाँ हम नंबर्स को नंबर से डिवाइड नहीं करेंगे, यहाँ हम पॉलिनोमियल को एक न्यू पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। चलिए तो बात करते हैं। डिवाइड द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर 5x plus 6 by x plus 2. Now your question is divide the polynomial x square plus 5x plus 6 by x plus 2. तो वही सेम प्रोसेसिंग है हमारी। यहाँ क्वेश्चन क्या था आपका? डिवाइड 20 बाई 3। यहाँ आपका क्वेश्चन है डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय x प्लस 2। चलिए तो बात करते हैं आगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको हमें डिवाइड करना है और x प्लस 2 से डिवाइड करना है। दिस इज योर डिविडेंट एंड दिस इज योर डिवीजर। अब जरा डिवाइड करने के यहाँ थोड़े रूल बदल जाते हैं। द मैक्सिमम पावर कंटेनिंग इन डिविडेंट इज एक्स स्क्वायर बट इन डिवीजर इट इज ओनली x। सो यहाँ 2 पावर है, यहाँ सिंगल पावर है। तो आपको पावर सिंगल का पावर 2 बनानी है, तो इसका मतलब इसमें किसी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे? तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लाई करें? तो एक वेरिएबल x का मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए इस x की यहाँ मल्टीप्लाई करिए और जो वैल्यू आएगी उसे जस्ट इसके ही नीचे लिखना है। x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, x के साथ में किया, इट इज एक्स स्क्वायर। नाउ टेक दिस साइन, दिस इज पॉजिटिव, राइट? अगेन मल्टीप्लाई x बट विद 2, यू विल गेट 2x। जब हम साथ में डिवाइड करते हैं तो हमने क्या किया था? 20 को 6 से चलाया 6 टाइम एंड यू गेट 2। ये 2 कहाँ से आया? माइनस करने के बाद तो आया। सेम हमें यहाँ करना है, यहाँ माइनस कर देना है। ये किया माइनस, ये किया माइनस। जब भी आपने माइनस किया तो इस माइनस करने के पहले जो भी साइन होंगे वो सब रिमूव हो जाने हैं। वो सब साइन कैसे हो जाने हैं? रिमूव हो जाने हैं। एक्स स्क्वायर में से माइनस करोगे एक्स स्क्वायर तो एक कैंसिल आउट हो जाता है। 5x से माइनस करोगे आप 2x, 5x माइनस 2x, यू विल गेट 3x एंड दिस इज कांस्टेंट। इसकी हमने बात नहीं की ना, तो आप उसे नीचे एज इट इज विद साइन लिख लोगे। नाउ दिस इज x प्लस 2 एंड दिस इज ऑल्सो x। तो वेरिएबल तो सेम है, तो वेरिएबल तो इसका मतलब हमें लेना नहीं है, बट वेरिएबल के साथ में क्या आया? 3 इज कोफिशिएंट। तो इसको इसके इक्वल बनाने के लिए आप इस बार 3 की मल्टीप्लाई करोगे और वो 3 कैसा हो? पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो? तो ये आपको बताने वाला है साइन, इसका साइन इट इज पॉजिटिव, सो यू हैव टू टेक पॉजिटिव 3। मल्टीप्लाई पॉजिटिव 3 दिस पॉजिटिव 3 विद डिवीजर। Multiply 3 with x, you will get 3x. Multiply 3 with 2, you will get 6. Again the same rule, basic rule, subtract. 3x minus 3x, they cancel. 6 minus 6, 0. The remainder is 0. इस तरह हम पॉलिनोमियल्स की डिवीजन करते हैं। Now we get remainder is 0. This is quotient. This is your divisor एंड दिस इज योर डिविडेंड। सो देखते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम यहाँ भी अप्लाई होती है नहीं होती है। चलिए देखते हैं। डिविडेंट इक्वल्स डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। चलिए देखते हैं। योर डिवीजर इज x प्लस 2 मल्टीप्लाई योर क्वोशिएंट इज x प्लस 3 plus and your remainder is 0. Now multiply this bracket, multiply x
विद होल ब्रैकेट यू विल गेट x प्लस 3। x का मल्टीप्लाई हो गया। अब बात करते हैं प्लस 2 की मल्टीप्लाई। प्लस 2 की मल्टीप्लाई करिए x प्लस 3 के साथ में। x मल्टीप्लाई विद x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई विद 3x, 2 मल्टीप्लाई विद x 2x, 2 मल्टीप्लाई विद 6 it is just 6, 3x plus 2x it is 5x plus 6। तो डिविडेंड इतना आना चाहिए हमारा। and we have already taken the dividend is x square plus 5x plus 6 and your dividend is also x square plus 5x plus 6. That means it satisfies remainder theorem. Now today's topic is over and I am giving some questions. You have to solve these questions in the fair copy, right? So join all of you.